जन्म जन्म से। We are here to bid farewell to an exemplary religious, a great soul, a silent and benevolent person, skilled and committed carpenter, a man who has not only nourished his own occasion but also motivated and inspired many from his parish to embrace religious life and priesthood. It is none other than Brother Celestine Francis Beck. We thank and praise God along with his dear and near ones that we are here to give him a solemn farewell to Brother Francis Beck for his 63 years of religious life as a Divine Word missionary and 92 years and 2 months of his earthly life. We thank God for calling him to God's eternal abode
relieving him of the pain of this life. He has fought a good fight, he has finished his race, and he has kept up his faith well. The early morning of 24th February, Father Nicholas found him on his bed with a wound on his head, probably due to a fall at night. He was still conscious, but later he stopped responding to anyone but was breathing heavily. Father Nicholas administered the sacrament of anointing in the afternoon. On the next day, on 25th, he was admitted in the ICU of Robert Nursing Home, and the doctor suggested, after going through the CT scan report, a surgery to remove the blood clot in the brain. Even though surgery was successful, God called him to his eternal abode at 11:40 p.m. on 25th night. Brother Francis Beck Salesian was born on December 29, 1929 in Rajagambur parish of Ravarakkala diocese to late Mr. Simon Beck and later Mrs. Josephine. He was baptized and given the name Celestian. He had 3 brothers and 2 sisters. The family atmosphere was conducive for the growth of religious life. However, having completed his middle school, he continued to work on his family farm in the village. He was regular for the Eucharist and longed to become a religious. Having known that the SVDs were inviting young people to join the missionary religious life as a priest or as a brother candidate, he opted to join the SVD as a Divine Word brother. And so, in a mature age of 27, he joined the Catholic Ashram Palna on June 26, 1956. He pronounced his first vows on September 8, 1959, and the final vows on September 8, 1964. In his novitiate, he took the name Francis. Already as a postulant, Salesian was attached to the carpentry run by Brother Floranus Oaks, SVD, at Bishop's House campus. He used to work there, learning the rudiments of carpentry from Brother Floranus. From the time of his first vows, he was fully attached to the carpentry of Brother Floranus Oaks. Having mastered the trade, he was transferred to Sendua to assist Father Henry Wickelman, SVD, who was in the process of building up various institutions in Sendua in 1966. He worked there quietly even after the sudden demise of Father Henry Wickelman in 1974. He continued to serve Sendua especially to provide much of the carpentry work for the various buildings and also took care of the small boarding for the children till 1979. He left for the Navy tertiary course in the same year, and on his return from Navy, he was transferred as the director of Carpentry Training School at Pantana, Kandwa. In 1986, Brother Francis Beck became ill, and so he was transferred to Catholic Ashram Palna for treatment and recuperation. In 1988, he became active once again in the carpentry, shifted from Bishop's House campus to St. Arnold's campus. He was appointed Director of Carpentry for a time, assisted by Brother Francis Sanmansu. In 1990, he was transferred to Snehalaya Ashravat, and in 1992, he retired from his official duties but continued to work daily on the vegetable patch next to St. Arnold's, St. Joseph's Home, Indo. He could be seen wearing gumboots going around the house for a long time since then. Brother Francis was a man of prayer. Last few years, though he was fully confined to his room, he saw to that he comes to the chapel on a wheelchair or by making little steps. He was not a person resting during the day, but always found in reading Holy Bible or the book Imitation of Christ or saying Rosary, a great model of spirituality. Brother was a person of great simplicity. In this materialistic and consumeristic world where people are not happy with what they have and are greedy to get more and more, here is a man who did not want or accept anything, even his pocket money. All the extra clothes and things he had,
he gave to Father Rector to distribute to the poor. The shawls and gifts he used to receive during his birthdays and Christmas, he would tell Father Rector to give to the poor instead of accepting for himself. He was like a St. Joseph, the silent carpenter, a hard worker. He learned the skills of carpentry and did his job silently. His the furnitures at the Sendhu and Bandhana will speak for his carpentry skills. He was a person who encouraged and motivated many young boys and girls to join the religious life, kept them in his contact list, inspiring them with his life and letters. He used to approach me when I was there earlier as a preparator in Sevasadan to get stamps and to make photocopies of the letters, especially during Christmas, to send to all the fathers and sisters from his home parish. Brother Francis was a person who never complained about anything. He was satisfied with what he got, never troubled anyone. He managed himself for all his personal needs. He cherished a loving relationship with his home, his brothers and sisters, nephews and nieces. That's the reason his nephews and nieces are present with us today. Dear Brother Francis, you have been an inspiration to all of us in the province. We value your great inspiring religious life. May your soul enjoy the bliss of heavenly abode. क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब ब्रदर फ्रांसिस बेक की इस अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब कोई भली आत्मा या साधारण आत्मा या संत आत्मा का देहांत होता है तो हमें वास्तव में खुश होना चाहिए। खुश इसलिए कि ईश्वर ने हमारे ब्रदर बेक को कई आशीषों से भर दिया। उन्हें एक लंबा जीवन उन्हें प्रदान किया। 92 ईयर्स, 92 साल और कुछ महीने। माइकलएंजेलो कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कहते हैं, आई एम वेल व्हेन आई हैव ए चीजल इन माई हैंड। और मैं कहता हूँ कि ब्रदर बेक भी शायद यही कह सकते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अगर मेरे हाथ में, मेरे सिर पर एक टोपी हो, मेरे कान में एक पेंसिल हो और मेरे हाथ में एक स्केल हो। यह उसकी पहचान थी जब मैं सेंधवा में था। ब्रदर बेक, उनमें मिशनरी भावना कूट-कूट कर भरी थी, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं वहाँ हॉस्टल का इंचार्ज था तो ब्रदर उन बच्चों को किस प्रकार से वो चाहता था कि जितने भी बच्चे हमारी हॉस्टल में हैं कहीं ना कहीं जा कर के हमारे हो जाए। इसलिए वो मेरे साथ, हम छुट्टियों में बच्चों के घर विजिट करने जाते थे तो वो मेरे साथ चलता था। हम बस में बैठ के जाते थे, चलते जाते थे गांव में किधर उधर भी। पर उनमें मन में यह तीव्र अभिलाषा थी, एक कारपेंटर का काम करते हुए उनमें यह इतनी तीव्र अभिलाषा थी कि मैं इन बच्चों को अपना बनाऊं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जोब कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है। क्या बात है। जोब कहता है कि मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है, मैं मानता हूं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है। जबकि जोब के जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां आई, फिर भी वो इस विश्वास पर सुदृढ़ रहा और ये विश्वास था कि न्याय के दिन फिर वह जी उठेगा और हम एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के दर्शन करेंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे कि मेरा मुक्तिदाता कौन है। क्या बात। मैं सोचता हूँ
जैसे कि प्रोविंशियल ने बताया और आगे भी बताया जाएगा होमिली में, प्रवचन में, ब्रदर बेक निश्चित रूप से ये जानता था कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है, मेरा मुक्तिदाता जीवित है। और यही विश्वास मुझे भी जीवित करेगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि एक भली आत्मा, बहुत ही प्यारी आत्मा, भली आत्मा, साधारण आत्मा, संत आत्मा थी ब्रदर बेक। आइए, जब हम उनके लिए इस अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तब हमें वास्तव में थोड़ा दुख भी है, पर खुशी ज़्यादा होनी चाहिए। खुशी ज़्यादा होनी चाहिए कि ऐसी भली आत्मा हमारे साथ, हमें उनके साथ रहने का हमें सौभाग्य मिला और आज वो हमारे साथ छोड़ करके ईश्वर के साथ पहुंच गया है। हार्दिक हार्दिक हमारी शुभकामनाएं ब्रदर बेक। आपको जहां जाना था, आपकी जहां जाने की इच्छा थी, आप वहां पहुंच गए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। ईश्वर आपको आशीर्वादित करे और अनंत काल तक आपको अपने साथ में बनाए रखे। आइए उन इन्हीं शुभ पवित्र भावनाओं के साथ में आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में आगे भाग लें, अपने आप को तैयार करें कि हम ब्रदर की जीवन से कुछ प्रेरणा लें, कुछ, क्योंकि किसी समारोह में हम जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ लेना चाहिए और ब्रदर हमें बहुत कुछ दे के गए हैं। आइए हम धन्यवाद स्वरूप अभी खड़े हो जाएं और मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। Shri
हे ईश्वर, तू पापियों की करुणा और संतों के परमानंद है। हम तेरे सेवक ब्रदर फ्रांसिस बेक की दफन विधि में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन्हें अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर, ताकि ये मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर पुनरुत्थान के दिन तेरे सम्मुख उपस्थित हो सकें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप दोनों पर आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि आप प्रभु की वाणी की घोषणा योग्य रीति से कर सको। पिता पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पद नबी इसायास का ग्रंथ। प्रभु सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। अध्याय 25 वचन संख्याएं 6 से 9 तक। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर करेगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। अध्याय 2 पवित्र वाक्य संख्या 8 से 13 तक। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो।
जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिसे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूँ, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूँ। हालेलुया। प्रभु आप के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 6 वाक्य संख्या 37 से 40 तक। यीशु ने लोगों से कहा, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूँ, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूँ। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का सुसमाचार। माहिम गणावाजी अपने धर्म प्रांत के विकास जनरल पद माइकल जॉन पद जोमन जेम्स अपने प्रोविंशियल वेदी पर सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, धर्म भाइयों, कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, विशेष तौर से बेक के परिवार के सभी सदस्यों। किसी ने कहा है, इस दुनिया में हम एक ही बार आते हैं। यदि कुछ अच्छा कार्य करना है हमें इस समय करना है, क्योंकि दोबारा आने का हम चेष्टा नहीं करते। We come only once in this world. Any good thing we must do it now, because there is no another chance to come to this planet. जैसा कि फादर प्रोविजन ने कह दिया, 23 फरवरी सुबह जैसे हम लोग देखने जाते हैं मिस्सा के पहले कि ब्रदर खुद ही तैयार हो जाते हैं मिस्सा के लिए। उस समय हम देखने गए, मैं और मेरा साथ मिस्टर ओमकार जो कि देख रेख करता है, उन्होंने देखा कि ब्रदर बैठे हुए हैं, बल्कि कुछ खून नीचे गिर पड़ा था। समझ गए कि ब्रदर कहीं ठोकर खाए हैं। हमने कह दिया, ब्रदर अभी मिस्सा नहीं आना, हम मिस्सा के बाद आएंगे, शुश्रूषा थोड़ा करेंगे, अब ठीक हो जाओगे। ब्रदर बैठे रहे। मिस्सा के बाद हम वापिस आए। आने के बाद प्रेमशिला ने सब शुश्रूषा की, तत्पश्चात कॉफी पिए और बैठे। तत्पश्चात हमें
बेड पे सुला दिया, फिर जोर शोर से अपना सांस लेने लगे। वो कभी कई घंटे चला। हमने कई सिस्टरों को बुला के पूछा कि अभी क्या करें। उनसे सलाह मशवरे से कह दिया, फादर अभी छोड़ दो, हम देख लेंगे। फिर भी दूसरा दिन सुबह हमने अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने सभी कुछ किया, सीटी स्कैन निकाला, जो कि सर्जरी की, और 1-2 घंटे के बाद हमसे चल बसे। जैसे कि ईश्वर ने शायद ये दिन तय किया है, इतवार के दिन ये पल्ली में ये अंत्येष्टि करने का मौका मिले। आप सोचते होंगे फादर मैं क्यों यहाँ उपदेश दूं, कहीं बिशप स्वामी अलग जगह पर पहुंच गए हैं, तो जो मैंने बोला आप ही दे दो क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं। वास्तव में तो सही है। 2006 में मुझे अच्छा मौका मिला इनका परिवार में भेंट देने की, राजगानपुर में सुकानाला अबुजको पहाड़ में 4-5 दिन में वहाँ रहा, ब्रदर के साथ रहा। दुराई ने कह दिया वाइस प्रोविंशियल आप जाइए, हमें मिशन जाने के लिए हर बार तैयार रहा। और जैसा कि हम सुबह सुबह उठते थे, हम कैसेट पहनते थे, हर घर मुझे ब्रदर ले गया वो 3 दिन में। हर घर, दोनों गांव में छोटा सा एक मंदिर है, चर्च है, जहाँ मिस्सा होती है हफ्ते में एक बार। मैंने 3 दिन मिस्सा चढ़ाई, और जैसे कि मैं हर घर गया, मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे दक्षिण में पहले होता था, कोई ना कोई परिवार में कोई सदस्य है जो धर्म भाई बना, धर्म बहन बना, पुरोहित बना, ये सेमिनरी में है और कुछ ट्रेनिंग में है। तो बातों बातों में मुझे मालूम पड़ा कि ब्रदर ने इनको प्रेरणा दी है। कोई डॉन बॉस्को पुरोहित बना है, कोई अन्य धर्म के पुरोहित बने हैं, बल्कि ब्रदर के द्वारा ये पूरा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ जब छुट्टी पे जाया करते थे वो तैयारी के साथ वे जाया करते थे अन्य ब्रदरों के साथ। आप सभी जानते हैं जो अपने प्रोविंस में कई सालों से कार्यरत हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ ब्रदर एक ऐसा परिवार से आया है, एक गॉड फियरिंग फैमिली, क्रिस्त को केंद्र बिंदु बनाकर ये अपना जीवन बिताते हैं, और ना सिर्फ खुद ही बिताते हैं, दूसरों को भी बिताने के लिए प्रेरणा देते हैं। फिर मैं जानता हूँ वहाँ से उनके जुबली 2009 में लेट बिरतो कुलंगरा जो बिशप आर्च बिशप थे नागपुर से, वे भी वहाँ पहुँच गए थे। उनका भी यही कहना था। तो कई बार हम सोचते हैं जो बुल्हार के निर्देशक बनते हैं वो पढ़े लिखे होना चाहिए, ही शुड बी ट्रेन्ड वेल, उन्हीं तरीके के वोकेशन प्रमोटर। ये तो सही नहीं कहते कि ब्रदर हमारे बाकी पल्ले में तो नहीं गए, बल्कि सुकानाला बुजकुपाड़ा में हर परिवार में जाया करते थे। अब कोई जन बने हमारे बीच में एक एसपीडी फादर भी बना है जो कि विदेश में है, विजय तिर्की, जो जर्मनी में फिलहाल कार्यरत है। तो इसलिए कृष्ण प्यारे भाई बहनों, ब्रदर का पूरा जीवन जो कि हम कह सकते हैं बेनिडिक्टन डिक्टन के ऊपर है, वोरा एट लबोरा, प्रार्थना और श्रम, वर्क एंड प्रेयर। जैसे कि फादर जो मैंने इसके बारे में सब कुछ कह दिया है। सभी जानते हैं इतना साल 30 साल तो लगातार अभी सेवा सदन में रहे, सेंट जोसेफ होम में रहे, प्रार्थना के लिए पहल करते थे। सुबह मिस्सा के बाद 8:30 बजे गम बूट्स पहनकर पूरे इलाके में जाते थे, और जो कोई पेड़ हम देखते हैं, पेड़ पौधा इनके हाथ का ही है, इन्होंने पहल किया है, इन्होंने लगवाया है, चाहे सब्जी हो, केले हो, अन्य कोई भी चीज जो कि पेड़ पूरे हैं, तो इनका ये कार्य रहा। और 11:30 बजे वापिस आते थे, फिर प्रार्थना में, फिर शाम को 6:30 बजे फिर एक बार चर्च में प्रार्थना, किसी की भी भारी हो बल्कि खुद ही लिया करते थे। ये इनका जीवन रहा। और ये 2 साल से मैं करीब से जानता हूँ क्योंकि मैं वही हूँ। ये क्या करते थे, जब थोड़ा विकलांग तो थे फिर भी अपना स्ट्रेचर लेकर साइड चावल में जाकर प्रार्थना किया करते थे। कल भी, परसों भी, जब तक ये बीमार नहीं हुई। इसलिए जैसे कि फादर ने कहा, ये संतों की कहानी, कई बार इमिटाशो क्रिस्टी, कई बार बाइबल और रोजरी बनाते करते रहते थे। इतना नहीं, कृष्ण प्यारे भाई बहनों, इनका जीवन थोड़ा मिशन में अच्छा रहा। जैसे कि फादर ने कहा, मेरी भी मुलाकात सेंद्रा में हुई थी 1980 में, जब मैं रीजेंसी कर रहा था बड़वानी में। ब्रदर वहाँ थे, कारपेंटर में सेवा देना, जैसे कि स्वामी जी ने कहा, बच्चों को प्रोत्साहन देना, उच्च शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए मदद करना,
और बोर्डिंग में और कारपेंटरी में मदद करते रहा। तत्पश्चात पंदाना में चले गए और पंदाना में उन्होंने यही कार्य किया। आप सभी जानते हैं जो कि इस प्रोविंस में बुजुर्ग हैं, तेने वोरा के लबोरा अपने जीवन में करके दिखाया है। साथ साथ में हम जानते हैं इन दिनों में 2 साल से मैं देखता हूँ, करीब 1 साल से जब फादर ने कह दिया मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे प्रभु के पास जाना है, इसलिए फादर रेक्टर आप मुझे कुछ मत देना। और एक एक चीज देते गए। मैंने कई बार टेबल पे कह दिया, शायद ब्रदर तैयारी कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, PhD कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर ए हैप्पी डेथ। तो वो था, सबसे पहले टाइपराइटर निकाला, फिर कुछ औजार था कारपेंटर के, वो निकाला। पता नहीं कि आप ले जाइए घर पे इस्तेमाल कीजिए और अन्य किसी को दे दीजिए। जो कुछ कपड़े थे सब बांटने लग गए। कल हमने जब उनका कबोर्ड ढूंढा वहाँ कुछ भी नहीं है, करीब करीब सभी उन्होंने बांटने लग गए। यहाँ तक में क्रिसमस कार्ड, बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे कार्ड, सब कुछ। तो ऐसा था ब्रदर का जीवन, यानी एक तैयारी प्रभु के जाने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, दूसरों का भला हो, ये है उनके सोच विचार। और अंत में लिविंग ग्रेटफुली, लिविंग ग्रेसफुली, एक ऐसा जीवन रहा जिन्होंने उनको परम प्रसाद हम रोज दिया करते थे, चर्च रोज आया करते थे। और जब परम प्रसाद देने से पहले उनको ये भी महसूस होता था कि परम प्रसाद देने के बाद मैं धन्यवाद नहीं बोल सकता हूँ। इसे देने के पहले कोई भी हो, सबसे पहले बोलेंगे थैंक यू या कभी धन्यवाद, तत्पश्चात परम प्रसाद देंगे। जब उनको गाड़ी से हम वापस छोड़ते हैं, जब कमरे के पास, कई बार हमने किया, सही लोगों ने भी किया है, और जब कभी पहुंचा देते हैं ये बोलेंगे थैंक यू, धन्यवाद। देन वन सेंटेंस फ्रॉम हिज माउथ हर बार, आई शैल मैनेज माई सेल्फ। बहुत सुंदर बात। सो व्हाट आई वांट टू से इज लिविंग ग्रेटफुली, ग्रेसफुली। हम उसमें प्यारे भाई बहनों, हम तो बहुत सुने होंगे और मदर क्लारस ने बहुत सुंदर ढंग से वो भी जो लिखा है, आप समय लेकर पढ़िए। ब्रदर तो चले गए, बल्कि हम इस दुनिया में और रहना है। तो एक या 2 बात मेरे सामने आ रही, जब ब्रदर के जीवन की कहानी हम बोलते बोलते मुझे याद आ रहा है कि जो संत यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 10 पद संख्या, मैं इसलिए संसार में आया हूं आप भरपूर जीवन पाओ। आई हैव कम इन दिस लाइफ दैट यू मे हैव लाइफ इन अबंडेंस। इसलिए हमें खुशी से हमें जीना है, चाहे सब कुछ संसार में हमारे खुशी नहीं मिलती है, जितना खुशी मिली है वो हमारे लिए बस है। और दूसरी बात, हमें ऐसा जीना है संसार में कि हम सब इधर हम मुसाफिर हैं, वी आर पिलग्रिम्स ऑन दिस अर्थ, नन ऑफ अस आर परमानेंट। थोड़ा सा हम रुकेंगे, फिर प्रभु हमें बुलाएगा। तो ऐसा जीना है जैसे ब्रदर ने जिए कि हम वास्तविक रूप से हम ये यहाँ से हमारे लिए एक मुसाफिर जैसे जीकर इस संसार में आगे बढ़ना है। लिव एज दो एवरीथिंग इज पासिंग इन दिस वर्ल्ड। फिर हमारे जीवन में दूसरों को कुछ अच्छा भला करना है। जैसे कि यदि हम शांत होने के बाद पूरा कमरे से निकालते हैं ब्रदर को वो अच्छा नहीं लगे, तो ब्रदर ने कहा कि आप निकालो, दूसरों को दे दो, बांटो, चाहे कुछ भी हो, हमारा नहीं चाहिए। यहाँ तक भी क्रिसमस गिफ्ट, यहाँ तक कि बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे हुआ था क्रिसमस के बाद 29, बोले कि मुझे कपड़ा मत देना, कुछ भी नहीं चाहिए, थैंक्स। जी हाँ, इसमें प्यारे भाई बहनों, मार्था को उन शब्दों पे याद आता है जब मार्था प्रभु से मिलती है, यदि आप हमारे बीच में होता मेरा भाई शांत नहीं होता। और प्रभु समझाते हैं कि पुनरुत्थान जीवन में हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो हमेशा के लिए जिएगा, वो कभी नहीं मरेगा। हाँ जी हाँ, हमारा निर्णय उस पर ही होगा हमारे जीवन के अंत में। वो है 25वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार में, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं बंदी गृह में था तुम मुझे देखने आए। हम यदि इन पर मनन चिंतन करें, हमारे जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है। कई दिन हम कर ही रहे हैं, बल्कि हमारे लिए ये ब्रदर एक मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया, जैसे कि स्वामी जी ने कहा, संत जैसे व्यक्ति है, हमें प्रेरणा देकर इस संसार से प्रभु के लिए प्रिय बन गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बीच में दोनों उनके भतीजे पहुँच गए हैं। एक भतीजे की बेटी भी एक अगस्टिन सिस्टर है और भतीजी की सिस्टर भी, वो अपने बीच में बैंगलोर से आई है। नमन करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग प्रभु कार्य जहाँ कहीं हो आप करते रहना। आइए इस संविधान में विशेष तौर से ब्रदर के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु उन्हें
अनंत शांति प्रदान करे। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी यह भेंट स्वीकार करे। हे प्रभु, अपने सेवक हमारे भाई ब्रदर फ्रांसिस बेक के निकट इनके दफन के अवसर पर हम तुझे यह शांति बलि अर्पित कर रहे हैं। यदि तेरे सेवक पर किसी पाप का कलंक या कोई मानवीय अपराध रह गया हो तो कृपा पूर्वक उसे क्षमा कर और मिटा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा धन्य पुनरुत्थान की आशा दी है, ताकि जो लोग अपने मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं वे अमरत्व की प्रतिज्ञा द्वारा दिलासा प्राप्त करें। हे प्रभु, वास्तव में तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है, और इस लौकिक निवास के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग में उनके लिए शाश्वत निवास तैयार किया जाता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और हम धर्माध्यक्ष देवप्रसाद गेड़ावा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक फ्रांसिस बेक की स्तुति ले, जिनको तूने आज इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया। इन्हें यह वर दे कि वे जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्रार्थना करें कि ईश्वर का राज्य हमारे बीच आए, ईश्वर की इच्छा पूरी हो। ईश्वर का राज्य, ईश्वर की इच्छा हमारे द्वारा ही इस दुनिया में आ सकती है और इसीलिए ब्रदर बेक ने बहुत प्रार्थना की। आइए उनके साथ संयुक्त होकर के, आध्यात्मिक रूप से संयुक्त होकर के हम वही प्रार्थना करें ताकि ईश्वर का राज्य हमारे बीच आए, ईश्वर की इच्छा
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। ईश्वर
में उनकी दफन की धर्म क्रियाओं में पधारे प्रिय भाइयों और बहनों, दिव्य शब्द संघ मध्य प्रांत की ओर से मैं उदयपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप देव प्रसाद गनावा को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ब्रदर फ्रांसिस बेक की आत्म शांति के लिए यह मिसा बलिदान चढ़ाया और प्रार्थना की। इंदौर धर्म प्रांत के विकास जनरल फादर माइकल जॉन के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने मिसा कौन सेलिब्रेट की और ब्रदर बेक के लिए प्रार्थना की। सभी पुरोहित भाइयों, धर्म संघियों के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने दुख के समय हमारा साथ दिया, मिसा बलिदान में भाग लिया और ब्रदर बेक के लिए प्रार्थना की। डॉक्टर खापरा, रॉबर्ट्स नर्सिंग होम की सिस्टर मिनेट और अन्य सिस्टर्स तथा अस्पताल में कार्यरत सभी लोगों के भी हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ब्रदर बेक की पहले भी और अंत तक बड़ी ही अच्छी तरह से देखभाल की है। सिस्टर प्रेमशीला और सिस्टर एलिस जो संत जोसेफ सेविका संस्था की सिस्टर्स हैं, हम उनके भी आभारी हैं, क्योंकि लंबे समय से ब्रदर बेक की देखभाल करती आ रही हैं और अंत तक बड़ी लगन और प्रेम से उन्होंने उनकी सेवा की है। SSPS सिस्टर्स, जिन्होंने ब्रदर फ्रांसिस बेक का कॉफिन सजाया, तथा उन सभी लोगों के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रदर फ्रांसिस बेक के अंतिम संस्कार को संपन्न करने में हमारी मदद की है। कैथलिक आश्रम पालदा के स्टाफ और स्टूडेंट्स, होली स्पिरिट चर्च के पल्ली पुरोहित फादर राजेश तिर्की और उनकी टीम को दफन की सभी धर्म क्रियाओं का बड़े ही अच्छे ढंग से इंतजाम करने के लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। विद्योदया सेमिनरी के स्टाफ और स्टूडेंट्स को क्वायर के लिए, फादर क्लैरेंस को ऑब्यूचरी के लिए, सत्प्रचार संचार केंद्र के विशेषकर फादर एंटनी स्वामी और उनकी टीम को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए धन्यवाद देते हैं। ब्रदर फ्रांसिस बेक के प्रियजन रिश्तेदारों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनको भी हम आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने ब्रदर फ्रांसिस बेक को हमारी संस्था और विशेषकर हमारी प्रोविंस को दिया। हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं का भी आश्वासन देते हैं। मिसा के तुरंत बाद दफन की पहली धर्म विधि यहीं पर होगी। तत्पश्चात अंतिम गीत के समय आप अंतिम दर्शन के लिए 2 कतारों में आ सकते हैं और अंतिम दर्शन के बाद हम जुलूस में कैथलिक आश्रम पालदा के कब्रिस्तान में दफन की धर्म क्रिया पूरी करने जाएंगे। हम मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त की आगमन की बाट जो होते हैं, वे हमारे नश्वर शरीर को रूपांतरित कर उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने सेवक हमारे भाई फ्रांसिस बेक को जो इस संसार से विदा ले चुके हैं, इस बलिदान द्वारा पवित्र कर दे, ताकि ये पाप से मुक्त होकर पुनरुत्थान का परमानंद प्राप्त करें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप विदा ने प्रभु की शांति देवे। हे प्रभु करुणा सागर, तू दीन दुखियों का आश्रय है और उन्हें सांत्वना देता है। तू अपने दुखी जनों को दिलासा दे। तू ही जीवन दाता और मृत्यु विजेता है, अब सदा सर्वदा और सदाकाल तक। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। अंतिम दिन में हे प्रभु महिमामय तू जब आए, तेरी दाहिनी ओर रहूं संतों सब
शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। प्रभु तेरी सूली को नतमस्तक हो आराधे। सदैव सबका उत्थान है, सदैव में ही जीवन है। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। आकाश धरती सब तेरी, मृत जीवन पाने दे। जिंदे तुझ में निरत रहे, आश्रय सबका होने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों के पापों को मिटा के उनको जीवन दे। ज्ञान स्नान के पानी से सब जन तेरी संतान है। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतलोक तेरी काया को एवं पावन लोगों को स्वीकार लिया पृथ्वी में, स्वीकारो अब आकाश में। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। बोए बीजों मिट्टी में, उगते वर्षा बूंदों से। सुनकर ध्वनि की आवाज मृतक सारे जीव उठे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मृतकों को नव जीवन दे। शैतान शक्ति दूर करो, जीवन ज्योति दान करो। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। न्यायाधीश यीशु तू दे दो मुक्ति पापों से। न्यायाधीश से बचा ले तेरे नश्वर भक्तों को। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। हे प्रभु, अपनी कृपा से हमारे पापों को मिटा दे और हमें आशीष दे। तेरा अनुग्रह हमें संभाले। तू ही जीवन दाता तथा विजयदा है। तू ही जीवन का आधार तथा आत्मा का आशा केंद्र है। आप सदा सर्वदा और अनंत काल तक स्वीकार करना विश्वास पूर्वक सामने तेरे दासों को स्वीकार करना विश्वास पूर्वक सामने तेरे दासों का
आराम देता रहता तो कौन तेरे सामने टिक सकता। तेरे पास पहुंच मेरी शोभाएं, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मेरी आशा तेरे वचन पर है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। इस्राएल प्रभु पर आशा लगाए रहे, क्योंकि प्रभु दया सागर है। उसके पास मुक्ति है, वो इस्राएल को करेगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, तूने अपनी सजीव और जीवनदायी वाणी से मृदुला सुरुज को जीवित कर दिया। वही वाणी हमारे भाई ब्रदर फ्रांसिस बेक की न्याय के जलाई। तेरी दाहिने और धर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा दे। हे कृपा सागर, तू भी जीवन का स्वामी है, अब सदा सर्वदा आनंद का धर। ओ मसीह सबके प्रभुवर, तेरे दूसरे महिमापूर्ण आगमन के समय जब स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, सारे मृत लोग कब्रों में से जी उठेंगे और वो धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस भयानक क्षण में तेरे इस भक्त पर दया दृष्टि डाल और स्वीकार कर, जिससे यह भी उसी स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बने जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार किया गया है। आज के इस दिव्य कर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे विश्व पर और कलीसिया और उसकी संतानों पर तेरी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा हो, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। हे प्रभु, से अनंत शांति प्रदान कर। विश्वासियों की आत्माएं, विश्वासियों की आत्माएं, विश्वासियों की आत्माएं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। अभी अंतिम दर्शन का समय है, यहाँ हमको विनती करेगी। हम दो लाइन में हमारे कदली का सम्मान सपने की ओर हम रोज़ाना विनती करती हुई जाएंगे। सुन लो ना दुआ हमारी, पुकारे तुझे दुनिया हमारी। सुन लो ना दुआ हमारी, पुकारे तुझे दुनिया हमारी। सुन लो ना। तुझको
पुकारा, काहे को तू मूक रहा, सबने तुझको पुकारा, काहे को तू मूक रहा, संभालो ना अपनी धरा को, तू जो स्वामी पिता, सुनो दुआ हमारी, पुकारे तुझे दुनिया हमारी, स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ पिता के भवन, मैं जा रहा हूँ स्वर्गीय गे, मैं जा रहा हूँ स्वीकारने आज अनंत जीवन। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यदि भी हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान जी उठेंगे। हमारे भाई ब्रदर फ्रांसिस बेक का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक श्रद्धापूर्वक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है इस भाई को पुनर्जीवन और आलोकित न कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में यह तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहाँ तो युगानुग जीता और राज्य करता है।
सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई ब्रदर फ्रांसिस बेक को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाए रख गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम क्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि क्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने भाई ब्रदर फ्रांसिस बेक के लिए प्रभु से निवेदन करें कि यह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाए और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। आप लोगों का अनुवाक्य है, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई ब्रदर फ्रांसिस को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। इन्होंने क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए और हमारे भाई फ्रांसिस इस पृथ्वी पर अपने जीवन धर्म संगी जीवन जीते थे। इनको अपने स्वर्ग राज्य में अनंत स्वागत कर। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तू उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। जो अपने प्रिय जनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो अपने प्रतापमय राज्य में बुला ले। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से उत्तम प्रार्थना करें, जिसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया और हमारे मृत भाई ब्रदर फ्रांसिस बेक बारंबार बोले हैं। हे पिता हमारे, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे प्रतिदिन क्षमा कर, जैसे अपने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। माता मरियम अपने सेवक ब्रदर फ्रांसिस की आड़ रक्षा करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, अनेक स्त्रियों में और अपने तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। कभी दूर तो कभी पास है, सदा तेरा रहूं यही आस है। जीवन की यही हकीकत है, कहीं धूप है कहीं छाँव है, कभी दूर तो कभी पास है। इस दुनिया में क्या रहता है, घर तुझसे इस दुनिया में क्या रहता है, घर तुझसे ही मैं दूर हूँ। बस भारत से इस जीवन पार होंगे किनारे।
पास हूँ अभी मैं, दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन से अब जीता हूँ मैं, दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन से अब जीता हूँ मैं। जब मैं खो गया था तब तू खोज रहा था, जब मैं खो गया था तब तू खोज रहा था। मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए प्रभु तू खोज रहा था।